হেল্ল'। ঠিক আছে, লাষ্ট ক্লাছত আমাৰ ডিছকাছ হৈছিলে কি ষ্টাডি প্লেনটো চাব লাগিছিলে আৰু ৱেটেজ অফ মাৰ্কছ ইন ডিফাৰেণ্ট চেপ্টাৰ্ছ। তো যিহেতু আমি বেচিক্সৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ, তো উই শুড গেট টু ন' এবাউট দ্য টাৰ্মছ ইন ইনকাম টেক্স এক্ট। ফাৰ্ষ্টত সেইকেইটা টাৰ্মছৰ বিষয়ে শিকি ল'ম আৰু তাৰপিছত আমি আগবাঢ়িম। বিফৰ ডেট আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ কি লেজিছলেশ্যনছবোৰ কি আছিলে এই বুকৰ লগত ৰিলেটেড। তো আমি গম পাইছিলোঁ কি আমাক চাব লাগে ফাইনেন্স এক্ট আৰু ইনকাম টেক্স এক্টটো চাব আছিলে। ইনকাম টেক্স এক্ট যেতিয়া চাব লাগে তেতিয়াহ'লে আমাক ক'ৰ পৰা আমি চাব পাৰিম। ইনকাম টেক্সৰ এক্টৰ কাৰণে বুক থাকে, ডিফাৰেণ্ট পাব্লিচাৰ্ছৰ কাৰণে থাকে। চবতকৈ বেছি ভাল যোনটো অথেণ্টিক চ'ৰ্চ হৈ গ'ল সেইটো হৈ গ'ল ইনকাম টেক্সৰ ৱেবছাইটটো হৈ গ'ল, যোনটো আমাৰ CBDT বনাই ৰাখিছে। CBDT তেওঁলোকক গভৰ্ণ কৰি আছে। তেওঁলোকৰ যোনকেইটা ৱেবছাইট থাকে তাৰ পৰা আমাক ৰেফাৰ কৰিব লাগে। কি ৰেফাৰ কৰিব লাগে? ফাইনেন্স এক্ট আৰু ইনকাম টেক্স এক্ট। তো ইনকাম টেক্সৰ ৱেবছাইট এইটো হৈ গ'ল incometaxindia.gov.in। যদি তোমালোকক ইন ডেপথ জানিব লাগে কি এই এক্টটো কি কি লিখা আছে, তাত কি কি বিষয়ে তোমালোকক বুজাই আছে, তো সেই বস্তুখিনি জানিবৰ হ'লে আমি এইটো ইয়ালৈ যাম, এইটো URL-লৈ যাম। এইটো URL-ত যোৱাৰ আগত আমি কি গম পাব লাগিব কি টেক্স লজ এণ্ড ৰুলছ। টেক্স লজ কোনখিনি আছিলে? ফাইনেন্স এক্ট আৰু তাৰ ৰুলছ আছিলে, এমেণ্ডমেণ্টছ আছিলে। সেইকেইটা বস্তু আমি চব বস্তু এই URL-টোত পাই যাম। এই এড্ৰেছটোত যোৱাৰ পিছত আমাৰ গোটেইখিনি থাকিব। তো এইখিনি আমাক কেলৈ চাব লাগে? কাৰণ ইয়াত একজেক্টলি লৈয়ে আমাক কি কি কৈ আছে সেইখিনি বস্তু ডিফাইন কৰা থাকে। বুকছত আমাক আমাৰ লেভেলত বুজাবৰ কাৰণে তাক চিম্প্লিফাই কৰা থাকে, আৰু তাক এক্টে কি কৈ আছে সেইটো জানিব হ'লে আমি ইয়ালৈ যাব লাগিব। ঠিক আছে, তো ইয়াত অহাৰ পিছত আমাক ইয়াত টেব এটা দেখি পাইছোঁ, টেক্স লজ এণ্ড ৰুলছ। তাত গৈ আমাক ক'ত যাব লাগিব? এক্টত হ'লে ইনকাম টেক্স এক্টত আহিলোঁ আমি। ঠিক আছে, যোনে যোনে মোবাইলত এক্সেছ কৰিব পাৰা ষ্টাৰ্ট কৰি ল'ব পাৰা। ঠিক আছে, তো ইয়াত এইকেইটাই ৰিপিটেই হৈ আছে, আমি আগবঢ়াই নাই এতিয়ালৈকে। তো এই ইনকাম টেক্স এক্টটো কি হৈ গ'ল? দুটা আছিলে, দুটা পাৰ্ট। ইনকাম টেক্স এক্ট 1961 আৰু ইনকাম টেক্স এক্ট 2025। তো আমি এতিয়ালৈকে আমাৰ যোনটো চিলেবাছ আছে বুকত, তোমালোকৰ যদি চিলেবাছৰ পাৰ্টটো চোৱা, চিলেবাছটোত কি লিখা আছে? 2022 লিখা আছে। তো 2022 এতিয়ালৈকে কোনটো এক্টক ফ'ল' কৰি আছে? ইনকাম টেক্স এক্ট 1961। এইটো 2025টো এপ্লিকেবল হৈছেহে এইমাত্ৰ। তো আমাৰ এক্সামত এইটো অহাৰ চান্সেছ নাই। যদিও আহে পিছত আমি চেক কৰিব পাৰিম, ইমান এটা ডিফাৰেঞ্চিয়েট নহয় বুলি ভাবিব পাৰি। হয় নে নহয় নিজে চাই ল'বা পিছত গৈ। ঠিক আছে, এতিয়া আমি ক'ত চাম? ইনকাম টেক্স এক্ট 1961, যিহেতু আমাৰ চিলেবাছৰ লগত মেচ কৰি আছে। এক্টটো কি হৈ গ'ল? ইয়াত তোমালোকক এক্টৰ PDF-টো ইয়াত পাই যাবা। এইটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এক্টটো এনেকৈ ওলাই আহিব। এইটো হৈ গ'ল তোমালোকৰ এক্টটো এনেকৈ ওলাব। ইয়াত এৰৰ আহিছে, সেইটো আমাৰ ইছ্যু নহয়। এতিয়া কি হৈ গ'ল? ফাৰ্ষ্ট ছেকশ্যন কি হৈ গ'ল? শ্বৰ্ট টাইটেল এণ্ড কমেন্সমেণ্ট। এক্টৰ ছেকশ্যন ৱাইজ কি থাকে? পাৰ্ট থাকে। সেই এক্টৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো কি হৈ গ'ল? কি টাইটেলটো কি হয়? টাইটেল মানে এক্টৰ নাম কি হ'ব, কোনটো এৰিয়ালৈকে কভাৰ কৰিব আৰু কেতিয়াবা ষ্টাৰ্ট হ'ব। ঠিক আছে, চলো, যিহেতু ইন্ট্ৰডাকশ্যন হয় আমি অকণমান টাইম ইয়াত দি দিওঁ। ৱেবছাইটটো এইটো হয়, incometaxindia.gov.in।
ঠিক আছে, ৱেবছাইটত গ'লা, তাৰপিছত এইটো খুলিলা, ইয়াত কি লিখা আছে, এজ এমেণ্ডেড বাই ফাইনেন্স এক্ট 2025, মানে যেতিয়া ইনকাম টেক্স এক্টটো ইনিচিয়েলি আহিছিলে 1961ত, কিন্তু আমি কৈ আছিলোঁ কি তাক এমেণ্ডমেণ্ট এভৰি ইয়াৰ হৈ থাকে। কোনে কৰে? এভৰি ইয়াৰ বাজেটে কৰে। তাক যোনটো যেতিয়া আমি এক্টলৈ আহি যায়, কনভাৰ্ট হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে তাক ফাইনেন্স এক্ট 2025, তো 1961ৰ পৰা এক্টটো আহিছিলে, এতিয়া এমেণ্ডমেণ্ট হৈছে কেতিয়ালৈকে, লাষ্ট 2025লৈকে হৈ আছে। ঠিক আছে, এইটো কি হৈছে, বি ইট এনেক্টেড বাই পাৰ্লিয়ামেণ্ট। কোনে এক্টটো আনিব? পাৰ্লিয়ামেণ্টে আনিব, ইন দ্য 12th year of the ৰিপাব্লিক। 12th year কেতিয়া আছিলে? 1961। 47ৰ পৰা 12 + 12 তোমাৰ ইয়াত আহি গ'ল। 1961ত আহিছিলে, সেইটোৱে দি দিওঁ আমাক। তো ফাৰ্ষ্ট কি আছিলে? ছেকশ্যনে কাক কভাৰ কৰে? শ্বৰ্ট টাইটেল, এক্সটেণ্ট আৰু কমেঞ্চমেণ্ট। এই এক্টক কি বুলি কোৱা হ'ব? ইনকাম টেক্স 1961 বুলি ক'ব। আৰু ই কেতিয়া, কোনটো এৰিয়া কভাৰ কৰে? হোল অফ ইণ্ডিয়া, মানে গোটেইখিনি ইণ্ডিয়াক কভাৰ কৰিব। এতিয়া ইণ্ডিয়াৰো কি থাকে? এক্সটেণ্ট থাকে। এইটো ইণ্ডিয়া হৈ গ'ল, ধৰি ল এনেকৈ আছে। এই ইয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ অকল তুমি লেণ্ড মাছ কেইটাকে ইণ্ডিয়া বুলি কভাৰ ক'বা, নে এই যোনটো ৱাটাৰ বডিজ থাকিব তাকো ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত কভাৰ কৰা হ'ব নে নহ'ব? অকল ইয়াক ইণ্ডিয়া, হোল অফ ইণ্ডিয়া কৈছে, মানে অকল আমি লেণ্ড এৰিয়াটোকে চোৱা হ'ব নে এয়াৰ এৰিয়াক চোৱা হ'ব, বা ৱাটাৰৰ বাউণ্ডেৰিজবোৰকো ধৰা হ'ব? হোল অফ ইণ্ডিয়া ক'লে অকল লেণ্ড মাছকে ধৰা হয়, নে ৱাটাৰ বডিজকো ধৰা হয়, নে এয়াৰৰ স্পেচটোকো ধৰা হয়? চবকে ধৰা হ'ব। ইয়াত এতিয়া কোৱা হৈ গ'ল কি, লেণ্ড মাছৰ পৰা ইয়ালে 12 নটিকেল মাইলছ থাকে, NM বুলি থাকে। তো ইয়াৰ পৰা আমাৰ বাউণ্ডেৰী আছে, লেণ্ড মাছ আছে, লেণ্ড মাছৰ পৰা 12 নটিকেল মাইলছলৈকে ইণ্ডিয়াৰ বাউণ্ডেৰীলৈকে কভাৰ কৰি থাকিব। তাৰপিছত কি হৈ যাব? সেইখিনি ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ হৈ গ'ল। তাৰপিছত এই এক্টটো কভাৰ নহ'ব, এই এক্টৰ পাৱাৰটো নাথাকিব। ঠিক আছে, তো এইটো গম পাই গ'লোঁ কি ইয়াত 1961 বুলি তাৰ টাইটেল হৈ গ'ল। এক্সটেণ্টটো আমি গম পাই গ'লোঁ কি গোটেই হোল অফ ইণ্ডিয়ালৈকে কভাৰ কৰে। আৰু এইটো কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল? 1 এপ্ৰিল 1962ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। আহিছিলে 1961ত, এপ্লিকেবল হৈ গ'ল 1962ৰ পৰা। ঠিক আছে, এইটো হৈ গ'ল। কাৰ হৈ গ'ল? এতিয়া আমি চালোঁ ছেকশ্যন 1 চোৱা হৈ গ'ল। ছেকশ্যন 2ত ডেফিনেশ্যন থাকে। যিকোনো এক্ট তোমালোকে পঢ়িবা, যিকোনো এক্টে হওক, কোম্পানীজৰ এক্ট হওক, বা ইনকাম টেক্স এক্ট হৈ গ'ল, বা গ্ৰেচুইটি এক্ট হৈ গ'ল, যিকোনো এক্ট পঢ়িবা। ফাৰ্ষ্ট ছেকশ্যনটো কি হৈ গ'ল? ইন্ট্ৰডাকশ্যন হৈ যায়। আৰু ছেকেণ্ড ছেকশ্যনটো কি হৈ গ'ল? অকল ডেফিনেশ্যনছ থাকিব। ডেফিনেশ্যনছত তোমালোকক কি চাব পাৰিবা? এতিয়া এলফাবেটিকেল অৰ্ডাৰত লিখা থাকিব কি ইয়াৰ ডেফিনেশ্যন কি হয়, এগ্ৰিকালচাৰৰ ডেফিনেশ্যন কি হৈ গ'ল, বাকীকেইটাৰ ডেফিনেশ্যনছখিনি গম পাই থাকিব। আৰু ইয়াত যদি লাষ্টত তোমালোকে চোৱা, ইয়াত তোমালোকৰ কাৰণে কি লিখা থাকিব? ৰুলছ আৰু কণ্টেণ্টছবোৰ, ৰুলছবোৰ, ইয়াৰ এগেইনষ্টত ৰুলছ কোনখিনি বস্তুখিনি এপ্লিকেবল হয় সেইখিনি ইয়াত লিখা থাকে। ঠিক আছে, এইটো বুকত নোপোৱা, এইটো অকল ৱেবছাইটত আছে কাৰণে তোমালোকে ৰুলছটো বেলেগকৈ পাই আছা। তাৰপিছত কি আহি গ'ল? ছেকশ্যন 3, ছেকশ্যন 4 ওলাই গৈ থাকিব। ঠিক আছে, তো এইখিনি চাব হ'লে ক'লে আহিলে? ইনকাম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে এইখিনি আছিলে। তাৰপিছত আমাক চাব কি লাগিছিলে? মই যোৱা লাষ্ট ক্লাছত কোৱা হৈছিলে কি ICMR পৰ্টেলত যোনটো ৱেবছাইটটোত আছে, তাত তোমালোকৰ ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে কি থাকে? বেলেগকৈ এটা পাৰ্ট থাকে। সেই পাৰ্টকেইটা তোমালোকে ৰিভিজনৰ কাৰণে এইখিনি চাব লাগে। এইখিনি চাবৰ কাৰণে কি কি ক'ত যাব লাগিব? বুলেটিনছ আছিলে, ৱৰ্কবুক আছে, ছাপ্লিমেণ্টাৰী আছে, MQP আছিলে, ৰিভিজন টেষ্ট পেপাৰ আছিলে, আৰু জাৰ্নেলছ আছিলে। এইখিনিও যদি চোৱা তোমালোকক ক্লাছ মই এটাই দেখাই দিওঁ। ঠিক আছে, অকল এক্সাম্পল দেখাইছোঁ, ফাউণ্ডেশ্যন বুলি নহয়, তথাপিও চবৰ কাৰণে কি হৈ গ'ল? ফাউণ্ডেশ্যন, ইণ্টাৰ, ফাইনেল, চবৰ কাৰণে এটা এটা টপিক ধৰি লয় সিহঁতি। তো গোটেইখিনি তোমালোকক কি কৰি থাকে? ৰিভিজন বহুত সৰু সৰুকৈ লিখা থাকে। ইণ্টাৰতে আহি যাওঁ, কি আছে অসুবিধা?
ঠিক আছে ইয়াত দুটা টপিক চুজ কৰি ল'লে দুটা টপিকৰ তোমালোকৰ কাৰণে আকৌ বেলেগ বুক পঢ়িবৰ কাৰণে দৰকাৰ নপৰে তথাপিও পঢ়ি ল'লে বেছি ভাল হয় যিহেতু প্ৰথমবাৰ পঢ়ি আছা এনেকৈ পঢ়াৰ পিছত ইয়াক যেতিয়া ছামাৰাইজ কৰিবলৈ যাবা ইয়াত সৰুকৈ লিখা থাকিব তো এইখিনি তোমালোকে আকৌ চাব পাৰা ঠিক আছে একদম সৰু সৰুকৈ লিখা থাকিব বুজিবলৈও ইজি হ'ব পঢ়িবলৈও ইজি হয় ঠিক আছে এইখিনি চোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া ডিছকাছ কৰিম আগৰখিনি এতিয়া কি আহি গ'ল তোমালোকৰ কাৰণে চাৰ্জিং সেশন আহি গ'ল ফাৰ্ষ্ট কি পাই গৈছিলা তোমালোকে কমেন্সমেন্ট টাইটেল পাই গ'লা কমেন্সমেন্ট হৈ গ'ল তাৰ পিছত আহিলে সেকেন্ডত কি আছিলে ডেফিনেশন থাৰ্ডত কি আছিলে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ আছিলে তো এতিয়া আমি ফোৰ্থত কোনো চাম আমি ডাইৰেক্ট চাৰ্জিং সেশন চাম কি ইনকাম টেক্স একটে চাৰ্জ এটা কৰিব লাগে কি লেভি কৰিব লাগে এটা ৱৰ্ড পোৱা হৈছিলে কি লেভি লেভি মানে কি হৈ গ'ল কি এজন মানুহক ডিপাৰ্টমেণ্টে CBDT-এ কি চাইছিলে অকল ডাইৰেক্ট টেক্সৰ পাৰ্টটো চাইছিলে CBDT-এ এজন মানুহক যে ধৰিব তো টেক পাৱাৰ কোনে কৰি আছিলে ইনকাম টেক্স একটে কৰি আছিলে CBDT-এ যে এইজন মানুহকে ইমান কেজন ধৰি লোৱা এটা এৰিয়াত বহুত কেজন মানুহ থাকিব পাৰে তাৰ ভিতৰত এইজন মানুহকে যে চাৰ্জ কৰিব ধৰিব সেইটো কেনেকৈ চুজ কৰিব লাগে সেইটো কোনে ক'ব সেকশন 4 এ ক'ব কি এইজন মানুহক কেলে ধৰিব লাগে বেছ এটা থাকিব লাগিব উইদাউট বেছ তুমি যাক তাক গৈ চাৰ্জ কৰিব নোৱাৰা তো ফাৰ্ষ্টত কি হয় চাৰ্জিং সেকশনে কি কয় ইনকাম টেক্স শ্বেল বি চাৰ্জড ইন দ্য এসেসমেন্ট ইয়াৰ কোনটো ইয়াৰত চাৰ্জ কৰা হ'ব এসেসমেন্ট ইয়াৰত চাৰ্জ হ'ব ঠিক আছে এইটো ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট হৈ গ'ল ৰেটটো কি হ'ব ৰেট এট দ্য প্ৰেছক্ৰাইবড ফৰ দ্যাট ইয়াৰ ইন দ্য ফাইনেন্স এক্ট ফাইনেন্স এক্টত কি লিখা থাকিব ডিফাইন কৰি দিয়া হ'ব কি আমি চাৰ্জ কৰিম কোনটো বছৰত এসেসমেন্ট ইয়াৰত তেওঁ চাৰ্জ কৰিম কোনটো ৰেটত চাৰ্জ কৰা হ'ব যোনটো ৰেটটো ফাইনেন্স এক্টত ডিফাইন কৰা থাকিব আৰু কিহৰ বেচিছত আমি তাক চাৰ্জ কৰা হ'ব ইন ৰেসপেক্ট অফ total income of the previous year কিমান ইনকাম হ'ব তাৰ বেচিছত আমি তে কেতিয়া চাৰ্জ কৰিম এসেসমেন্ট ইয়াৰত চাৰ্জ কৰিম কোনটো ৰেটত চাৰ্জ কৰিম যি ৰেটটো ফাইনেন্স এক্টত ডিফাইন কৰা থাকিব অন এভৰি পাৰ্সন ৰেফাৰ্ড আন্ডাৰ সেকশন 2(3) ঠিক আছে এটো কোনে কৈ আছে সেকশন 4 এ কৈ আছে সেকশন 4 এ কি কৈ আছে কি আমি এজন মানুহক চাৰ্জ কৰিম কেতিয়া ইন দা এসেসমেন্ট ইয়াৰ ঠিক আছে এসেসমেন্ট ইয়াৰত চাৰ্জ কৰিম কিন্তু কোনটো ৰেটত চাৰ্জ কৰিম any rate which is defined or disclosed under finance act আৰু কিহৰ ইনকামৰ ওপৰত চাৰ্জ কৰিম এসেসমেন্ট ইয়াৰত চাৰ্জ কৰি আছো ৰেটটো আমি গম পাই গলো কিহৰ ওপৰত চাৰ্জ কৰিম ইন ৰেসপেক্ট অফ total income কেতিয়া আৰ্ন কৰিব লাগিব প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰত চেঞ্জ কৰিব লাগিব তো প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ গম পাইছো এসেসমেন্ট ইয়াৰ গম পাইছো আৰু পাৰ্সন গম পাইছো ৰেটটো আমি এনে গমেই পাওঁ ঠিক আছে তো এতিয়ালৈকে আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰত আমি ইনকাম কৰিম এসেসমেন্ট ইয়াৰত আমি চাৰ্জ কৰিম ৰেটটো আমি ফাইনেন্স সেক্টৰ পৰা লৈ ল'ম আৰু কাক চাৰ্জ কৰিম অন এভৰি পাৰ্সন তো কৈছে কাক অন এভৰি পাৰ্সন that is defined under section 2(3) section 2 subclause 3 subsection তোমাৰ 3 কি কৈ আছে কি যিমান কেজন পাৰ্সনক ডিফাইন কৰা থাকিব সবকে আমি চাৰ্জ কৰিব পাৰিম তো প্ৰথম কথা আমাক কাক জানিব লাগিব কি সেকশন 2(3) এ কি কৈ আছে কি কাক পাৰ্সন কৈছে কাক আমি ধৰিব পাৰিম বুলি কৈ আছে ঠিক আছে তো ফাৰ্ষ্টত আমাক কি গম পাব লাগিব পাৰ্সন প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কি হয় এসেসমেন্ট ইয়াৰ কি হয় ঠিক আছে তো তোমালোকে ফাৰ্ষ্টত উলাই লোৱা কি 2(3) পাৰ্সনৰ ডেফিনেশন কি কৈ আছে যদি বিচাৰি আছিলা বুক যদি আছে বুকত কি আছে আৰু যদি ইনকাম টেক্সৰ ওয়েবসাইটটো চাই আছা পাৰ্সনৰ ডেফিনেশন কি আছে হেটো এবাৰ চাই লোৱা
ঠিক আছে তোমাক কি কৈছে কি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কি হৈ গ'ল যি বছৰত আমি এটা ইনকাম আৰ্ণ কৰি আছোঁ ঠিক আছে সেইটো তোমাৰ 12 মান্থছ হ'ব পাৰে নহ'বও পাৰে ঠিক আছে তুমি যি বিজনেছ এটা কৰি আছা ধৰি লোৱা কেতিয়াবা বিজনেছটো ছেটআপ কৰি আছা 30th ছেপ্টেম্বৰত বিজনেছটো ষ্টাৰ্ট কৰিলা 2025 বিজনেছটো কেতিয়া ছেটআপ কৰা হ'ল 30th ছেপ্টেম্বৰ 2025 ইয়াৰ ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰটো কেতিয়া শেষ হয় এটা ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ কেতিয়া শেষ হয় 31st মাৰ্চত শেষ হয় তো ইয়াৰ নেক্সট 31st মাৰ্চটো কেতিয়া আহিব 31st মাৰ্চ 26 ঠিক আছে তো এইটো কোনটো ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰত পৰিছে 25-26ত পৰিছে তো যোনটো ইয়াৰত আমি ইনকাম এটা আৰ্ণ কৰি আছোঁ কি কৈছে দ্য ইয়াৰ ইন উইচ ইনকাম ইজ আৰ্ণড আমি এই বছৰ বিজনেছটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু 31st মাৰ্চলৈকে আমি এটা ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ শেষ কৰিলোঁ ইয়াত আমি কি কৰিলোঁ ইনকামটো আৰ্ণ কৰিলোঁ ইয়াক কি বুলি কোৱা হ'ব প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কেলে কোৱা হ'ব বিকজ দ্য ইনকাম ইজ আৰ্ণড ইন দিছ পিৰিয়ড আৰু ইয়াক আমি নেক্সট ইমিডিয়েটলি নেক্সট ইয়াৰত আমি কি কৰা হয় এছেছমেণ্ট কৰা হয় ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় such income মানে যোনটো ইনকাম তোমালোকে আৰ্ণ কৰিলা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ ইনকামটো প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ ইনকামটো such income is taxable taxable মানে তাক ওপৰত আমি চাৰ্জ কৰিম টেক্সটো লগাম taxable in the immediately following year কোনটো হৈ গ'ল 25 26 আছিলে কোনটো হৈ গ'ল 26 27 তো ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 26-27ত আমি কি কৰি আছোঁ এছেছ কৰি আছোঁ তাক আমি টেক্স লগাই আছোঁ তেতিয়াহ'লে তাক কি বুলি কোৱা হ'ব এছেছমেণ্ট ইয়াৰ ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ আমাক চাব নালাগে ইয়াত আমি কি চাম প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ আৰু এছেছমেণ্ট ইয়াৰ যি বছৰত ইনকামটো আৰ্ণ কৰিম সেইটো হৈ গ'ল প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ তাৰ নেক্সট বছৰটো কি হৈ গ'ল এছেছমেণ্ট ইয়াৰ তো টেক্সটো কেতিয়া লাগিব চাৰ্জ কেতিয়া কৰা হ'ব এছেছমেণ্ট ইয়াৰত না কি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰত গভৰ্ণমেণ্টে কি কৈছে কি এবছৰত তুমি ইনকামটো আৰ্ণ কৰি লোৱা 25-26 বছৰটো শেষ হৈ গ'ল তো মাৰ্চত আমি বিজনেছ কৰিম নে আমি কেলকুলেশ্যনটো আগত কৰি থাকিম তো গভৰ্ণমেণ্টে কি ক'লে কি মাৰ্চলৈকে তোমাৰ যেতিয়া ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ কেলেণ্ডাৰটো শেষ হয় তেতিয়ালৈকে তুমি বিজনেছটো শেষ কৰি লোৱা তাৰ পিছৰ যোনটো ইয়াৰ আহিলে নেক্সট ইয়াৰত তুমি বহি তোমাৰ আগৰ বছৰৰ যোনটো বিজনেছটো আছিলে সেই বছৰত তুমি তাৰ টেক্সটো পে'মেণ্ট কৰা এই পে'মেণ্ট কৰাৰো কাৰণে তোমালোকক কিমান টাইম দিয়া থাকে নৰ্মেলি 31st জুলাইত পে'মেণ্ট কৰিব লাগে তো মাৰ্চত তোমাৰ কি হৈ গ'ল ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰটো শেষ হৈ গ'ল ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ মাৰ্চত শেষ হ'ল আৰু জুলাইত কিমান মাহ থাকিলে কিমান মাহ দিলে তোমাক টেক্সটো পে'মেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে কেনেকৈ ফ্ৰী হ'ল 31st জুলাইত দিব লাগে 31st জুলাই হ'লে কিমান মাহ হয় 3 months or 4 months 4 months হয় তো 4 months তোমালোকক কি দিয়ে টাইম দিয়া থাকে কি তোমালোকে 4 monthsত তোমালোকৰ যিমানখিনি বস্তু থাকে সেইখিনি হিচাপ কৰি লোৱা আৰু পে'মেণ্ট কৰা ঠিক আছে এই টাইমটো কোনে ক'লে ফাইনেন্স এক্টে কৈছে বা ইনকাম টেক্স এক্টে অলৰেডি কৈ থৈছে সেইটো আমি আমাক চাব লাগিব কি কেতিয়া টেক্সটো পে'মেণ্ট কৰিব লাগে আমি গম পাইলোঁ এতিয়া আমি এই 31st জুলাইটো আমি কোনটো ইয়াৰৰ 31st জুলাইত আমি পে'মেণ্টটো কৰিম বা এছেছমেণ্টটো কৰিম এছেছমেণ্ট ইয়াৰৰ তো ইয়াৰ ডেটটো কি হ'ব 2026 হ'ব ঠিক আছে তো এইটো হৈ গ'ল কি 31st জুলাইটো হৈ গ'ল ফৰ নন অডিট কেছেছ নন অডিট কেছেছ অডিট মানে কি হৈ গ'ল কি এজন মানুহৰ যোনটো ইনকাম হৈ গ'ল সেই ইনকামত বেলেগ এজন মানুহে তেওঁ কি কৰিব লাগে চেক কৰিব লাগে ভেৰিফাই কৰিব লাগে whether the income shown is correct or not যদি আমি নন অডিট কেছ হয় তেতিয়াহ'লে আমাক 31st জুলাইত সেই পইচাখিনি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ পইচাখিনি আমি পে'মেণ্ট কৰি দিম আৰু যদি আমাৰ ইনকামটো কি হৈ গ'ল অডিট কেছেছত আহি গ'ল অডিট হ'লে কেতিয়া দিব লাগিব 30th ছেপ্টেম্বৰত অডিট কৰাব লাগে ইয়াৰ আগে আগে আমাক কি কৰিব লাগিব অডিট কৰাই শেষ কৰিব লাগিব অডিট হৈ গ'ল অডিট কৰাৰ পিছত তোমাৰ ওচৰত 1 মান্থৰ টাইম থাকে তো আমি কেতিয়া পে'মেণ্ট কৰিব লাগে অডিট কৰিলোঁ 30th ছেপ্টেম্বৰ লাষ্ট ডেট কেতিয়া হয়
30 ছেপ্টেম্বৰত কৰিব লাগে তাৰ পৰা এক মাহ গ'লে কিমান হ'ব লাষ্ট ডেট অক্টোবৰ 31st তো অক্টোবৰত আমি তাৰ ৰিটাৰ্ণটো মাৰিব লাগে বা তাৰ পে'মেণ্টটো কৰিব লাগে ঠিক আছে তো এইবোৰ ক'ত কোৱা আছে এইবোৰ সব বস্তু ক'ত লিখা আছে ফাইনেন্স এক্টত লিখা আছে যদি যিকোনো বস্তু লিখা নাই সেইখিনি আমাক মানিব নোৱাৰো তো আমি এতিয়া গম পাই গ'লো কি ফাৰ্ষ্টত এতিয়া প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ গম পাই গ'লো এছেছমেণ্ট ইয়াৰ গম পোৱা হৈ গ'ল এতিয়া আমাক লাগে কি পাৰ্চন কাক কোৱা হয় পাৰ্চনৰ ডেফিনেশ্যন কি গম পাবলা বহুত কি লিখা আছে সব গোটেইখিনিকে কোৱা হয় তো ইয়াত ফাৰ্ষ্টত কোন হৈ গ'ল ইণ্ডিভিজুৱেল হৈ গ'ল ইয়াত কোনোবা মেল ফিমেল জেণ্ডাৰ ৱাইজ একো ডিভিজন কৰা নাই ইণ্ডিভিজুৱেল এটা হৈ গ'ল তাৰপিছত HUF আৰু হা কোম্পানী আৰু ফাৰ্ম হৈ গ'ল AOP BOI আৰু লোকেল অথৰিটি আৰ্টিফিচিয়েল জুডিচিয়েল পাৰ্চন AGP ইয়াৰ বাহিৰে আৰু কিবা আছে LLP বুলি পাইছিলা নেকি কেতিয়াবা তোমালোকে বিকম 6 চেম আছিলা নহয় LLP পাইছিলা নেকি ক'ৰবাত ৱৰ্ড LLP কোনোবা পাইছা যদি কোৱা maximum of you are in becomes 4th sem or higher তো কোনোবাই ক'লে অকল লিমিটেড লাইবিলিটি পাৰ্টনাৰশ্বিপ কি হৈ গ'ল লিমিটেড লাইবিলিটি পাৰ্টনাৰশ্বিপ এইটো ক'ত পৰিব কোৱা তোমালোকে টাইপ অফ পাৰ্চনত ক'লা ইণ্ডিভিজুৱেল হৈ গ'ল HUF হৈ গ'ল কোম্পানী হৈ গ'ল ফাৰ্ম ক'লা AOP এছ'চিয়েশ্যন অফ পাৰ্চনছ বডি অফ ইণ্ডিভিজুৱেলছ লোকেল অথৰিটি আৰু আৰ্টিফিচিয়েল জুডিচিয়েল পাৰ্চন ক'লা তো LLP টো কোনটো জেগাত পৰিব ক'ত পৰিব হা কোম্পানীত কেলে পৰিব ফাৰ্মত লজিক থাকিব লাগিব যিকোনো বস্তু ক'বা তাত ইনকাম টেক্স সেক্টৰতো লজিক থাকিবই লাগিব ফাৰ্মত কেলে পৰিব কাৰণ LLP কি হৈ গ'ল লিমিটেড লাইবিলিটি আৰু ইয়াত লিখা কি আছে পাৰ্টনাৰশ্বিপত মানে কি হৈ গ'ল ফাৰ্মত আহে পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফাৰ্ম আৰু ফাৰ্ম মানে কি হৈ গ'ল একেটাই বস্তু হৈ গ'ল তো LLPও একেলগে ফাৰ্মৰ লগতে আহে তো ইণ্ডিভিজুৱেল হৈ গ'ল কাক কৈছে মানুহক কৈছে হিউমেন বিংছক কৈ আছে তো ইয়াত মানুহখিনি হৈ গ'ল ইয়াত মানুহৰ জেণ্ডাৰ ৱাইজ ডেফিনেশ্যন কৰা আছে নাই কৰা HUFত কি আছে হিন্দু আনডিভাইডেড ফেমিলি য'ত কোন থাকিব কৰ্তা থাকিব আৰু মেম্বাৰ্ছ থাকিব কৰ্তা কোন হৈ গ'ল যোনে সেই হিন্দু ফেমিলিটোৰ হেড হ'ব সেইজনক আমি কি বুলি কোৱা হয় কৰ্তা যোনে সব বস্তু ডিচিশ্যন লোৱা হ'ব আৰু বাকী যিমানবোৰ মেম্বাৰ্ছ থাকিব তেওঁলোকক আমি কি বুলি কয় মেম্বাৰ্ছ বুলিয়ে কোৱা হৈ গ'ল তো এই যিমানবোৰ এটা এই হিন্দু আনডিভাইডেড ফেমিলিত মই এক্সাম্পল এটা কৈছোঁ তোমালোকক কি ধৰি লোৱা তোমাৰ নামটো কি অনন্যা তোমাৰ নামটো অনন্যা আৰু ৰিচাৰ্ড কি লিখা পিনাৰু হৈ গ'লেতো নহ'ব চলো ঠিক আছে মানিছোঁ ঠিক আছে আৰু তোমাৰ শিক্ষা কি প্ৰধান তোমাৰ ঠিক আছে ইয়াত হিন্দু কি কোনজন হিন্দু হৈ গ'ল দুজন হিন্দু হয় ঠিক আছে তো এজন কি হৈ গ'ল হিন্দু এজন কি হৈ গ'ল হিন্দু তুমিতো হিন্দু নহয় চলো এতিয়া মোক কোৱাচোন এই তিনিটা ফেমিলি আছে ধৰি লোৱা তোমালোক কেনেবাকৈ তিনিজন কি হৈ গ'ল ৰিলেটেড হৈ গ'লা কেনেবাকৈ ঠিক আছে এজনে এজনক চিনি পোৱা এজনক কিবা বুলি মাতা ফেমিলি বুলি মাতা তে তোমালোকে গৈ ইনকাম টেক্সৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ওচৰত ক'ব পাৰিবা নেকি কি
আমি HUF এটা ফৰ্ম কৰিব বিচাৰি আছোঁ আৰু HUFত ধৰি লোৱা ইয়াক আমি কি বুলি বনাইছোঁ কৰ্তা হিচাপে ৰাখিব বিচাৰি আছোঁ। কৰ্তা মানে কি আমাৰ হেড বুলি অথৰাইজ সিগনেটাৰী হিচাপে আমি ৰাখিব বিচাৰিছোঁ। তো এই বিজনেছটো আমাৰ লিড কৰিব, বাকী কেইজন আমি মেম্বাৰ হিচাপে থাকিম আৰু আমি HUF এটা ফৰ্ম কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমি পাৰিম নে নোৱাৰিম? কেলৈ নোৱাৰিম? ठीक है, वो तो आपका क्या हो गया, सेकेंड केस हो गया। चलिए मान लेते हैं ये सेकेंड। पहला फर्स्ट बेसिक चीज क्या होना पड़ता है HUF फॉर्म बंद करने के लिए? इसका हिंट नाम में ही है, हिंदू होना पड़ेगा। अगर आप हिंदू नहीं है तो कोई मुस्लिम आके नहीं बोल सकता कि हमको HUF बनाना है, या क्रिश्चियन कोई आके नहीं बोल सकता, बुद्धिस्ट आके नहीं बोल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या होना पड़ेगा? हिंदू अनडिवाइडेड में क्या होना पड़ेगा? पहले हिंदू होना पड़ेगा। तो ये भाई साहब नहीं है तो नहीं आ सकता है, चाहे वो आपका फैमिली का ही कोई इंसान क्यों ना हो, तो नहीं हो सकता है। फिर बात हो गया कि आपने बोला कि सेम लीनियज से आना पड़ेगा, तो ये भी नहीं हो सकता आप लोग का बीच में। फिर ये एक जन बोला कि आपने बोला कि हम करेगा। ठीक है, तो आप किसको किसको ले सकता है? आपका कोई भी लाइन का कोई भी हो गया, ग्रैंडफादर है तो ग्रैंडफादर को आपको क्या करना पड़ेगा? कर्ता बनाना पड़ेगा। फिर बाकी मदर फादर या आपका उनका भाई का जो भी चाचा चाची जो भी होगा उन सबको क्या कर सकता है? आप मेंबर्स बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट अभी और एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मान लीजिए आपका ग्रैंडफादर है, ठीक है, लेकिन उनको कर्ता नहीं करके आप अपना फादर को कर्ता बना सकता है या नहीं को बना सकता है? सकते हैं, लेकिन क्या होना पड़ेगा? इनको नो ऑब्जेक्शन एक देना पड़ेगा कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर आपका फादर या आपका मदर कोई भी हो वो भी HUF का कर्ता बन सकता है। तो जेंडर का बेसिस में कोई कर्ता होगा नहीं होगा वो उससे कोई मैटर नहीं करता, आपका माँ भी हो सकता है। लेकिन और एक बात, आपका माँ क्या हो गया? आपका फैमिली में आ गया, क्या नाम था आपका? शिक्षा ना, शिक्षा प्रधान का फैमिली में आया हुआ है। लेकिन आपका माँ तो आपका नाना का भी फैमिली का ही मेंबर है। तो आपका मान लीजिए नाना का एक HUF है, नाना HUF, और ये हो गया शिक्षा HUF मान लीजिए। ठीक है, शिक्षा का HUF में उनका मदर मेंबर है, नाना का HUF में उनका बेटी है वो, तो उनका बेटी भी क्या है? मेंबर है, डॉटर है। ये दोनों HUF में मेंबर हो सकता है या नहीं हो सकता? पहला बात, हो सकता है नहीं हो सकता? और कोई? खाली एक जन ने ओपिनियन बताया, और बताओ। पिनारू जी बोलिए। क्या आप लोग का बीकॉम खत्म हो गया? कहाँ से? मार्गेटा कॉलेज। तो यहाँ पे कैसे? दोनों ही? अच्छा, तो या तो थकी हुए सर आडुमी क्या नहीं हो सकता है? हो सकता है। शादी हो गया बोल के क्या हो गया? इनका बेटी नहीं रहा क्या है? तो रिलेशन रहने से HUF बन सकता है, रिलेशन है HUF रह सकता है। शादी हो गया बोल के दोनों जगह का HUF का मेंबर नहीं हो सकता, ये कोई बात नहीं है, हो सकता है। ठीक है, फिर अभी क्या करना है? HUF समझ में आ गया आप लोग को? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गया। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आप लोग का मेंबर ज़्यादा हो सकता है, फैमिली का ही मेंबर होना पड़ेगा, ज़्यादा हो सकता है। और उसमें क्या हो जाएगा? इन चीज़ को आप लोग को देखने के लिए कि कोई भी एक पैन कार्ड आप लोग को, तो किसी का मुंह नहीं दिखाई देगा कि ये फैमिली में कि इतना एक सिंगल इंडिविजुअल है और ये HUF है बोल के आप लोग को क्या सबका इतना सारा मेंबर्स है बोल के फोटो थोड़ा था कहीं पे आइडेंटिफाई करने के लिए। उसको कैसे आइडेंटिफाई करता है वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी कंपनी आप लोग को पता है कि शेयर होल्डर्स होगा, शेयर होल्डर्स ने अपने
पैसा लगाया होगा, पैसा लगाने का बाद में क्या करना है, कुछ एक बिजनेस के लिए अगर काम किया है तो उनको कंपनी फॉर्म कर सकता है। फिर फर्म कोई एक काम के लिए आया है, 3-4 जन आया है, उनको क्या करना है, कंपनी नहीं फॉर्म करना है। उन्होंने बोला कि हम लोग पार्टनरशिप में काम करेगा और जो भी प्रॉफिट होगा और लॉस होगा दोनों को हम लोग को शेयर करना है, और उसके बीच में अगर एग्रीमेंट बना लिया है तो वो हो गया पार्टनरशिप फर्म, सेम हो गया LLP। ठीक है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में क्या हो गया कि अगर आपका पास में कोई एक HUF है, कोई एक इंडिविजुअल है, कंपनी है या फर्म है, 4 टाइप का इंसान पर्सन आया है और चारों मिलके अगर कोई एक बिजनेस के लिए कुछ एक एंटिटी फॉर्म किया है तो उसको हम लोग बोला जाता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अगर यहाँ पे 4 इंडिविजुअल्स आ गया है, 4 इंडिविजुअल्स अगर आ गया है तो उसको क्या बोला जाएगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, क्योंकि इंडिविजुअल्स आया है। लोकल अथॉरिटी में क्या होता है, जो भी आप लोगों का छोटा मोटा एरिया में जो आप लोगों को गवर्न कर रहा है वो सब अगर कोई भी एक्ट का अंडर में फॉर्म हुआ है और आप लोग का लिमिटेड एरिया पे क्या कर रहा है, अथॉरिटी जमा के रखा हो, जैसे हो गया क्या आप लोग का म्यूनिसिपलिटी बोर्ड हो गया, एक छोटा सा एरिया हो गया, या आप लोग का पंचायत हो गया, तो वो सब को हम लोग क्या बोला जाता है, लोकल अथॉरिटी। फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो गया, दैट काइंड ऑफ पर्सन which are formed as a direction or under a direction of the parliament or any act। जैसे क्या हो सकता है आप लोग का एग्जाम्पल बोलिए। अभी आप लोग कौन सा कोर्स में एडमिशन लिए, अभी किस कोर्स का लिए आप लोग पढ़ रहे हैं, CMA। तो CMA को बनाने के लिए, CMA के लिए क्या बना था, एक एक्ट बना हुआ है और उस एक्ट ने बोला है कि आप लोग को इंस्टीट्यूट एक फॉर्म करो, तो वो हो गया क्या, अंडर द डायरेक्शन ऑफ एन एक्ट, तो वो हो गया आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। किसको बोला जाता है, इसको बोला जाएगा। फिर सेम यूनिवर्सिटी आप लोग का बना हुआ है, कॉलेज आप लोग का बनता है, वो सब किसका लिए बनता है, अंडर ए डायरेक्शन ऑफ एक्ट। अगर डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी भी बना हुआ है या आप लोग का गुवाहाटी यूनिवर्सिटी भी बना हुआ है, वो सब के लिए अलग से ऑलरेडी स्टेट से क्या होता है, एक्ट बन के आता है। जैसे हम लोग का लिए सब जेनेरिक हो गया, पार्टनरशिप एक्ट अलग से हो गया, वो जेनेरिक एक्ट है कि आप लोग पार्टनरशिप बनाना है बनाइए और काम करिए, वो हो गया जेनेरिक एक्ट। लेकिन आप लोगों का कोई भी एक सोशल वेलबींग के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, हेल्थ के लिए अगर कोई भी गवर्नमेंट ने, किसने बोला, गवर्नमेंट ने ये एक्ट लाया है कि ये सब चीज़ करो और इससे आदमी लोगों का भलाई करो, पढ़ाई करो, जो भी करना है उसका लिए अगर कुछ भी काम हो रहा है और उसका लिए अगर कुछ एक एंटिटी फॉर्म हुआ है, उसको क्या बोला जाएगा, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बोला जाएगा। ठीक है, हो गया। अभी आप लोग को यहाँ पे क्या क्या नाम दिखा है वो सब याद है, अभी टाइप ऑफ पर्सन्स तो याद रहेगा आप लोग को। तो चलिए इस चैप्टर में अभी हम लोग, इस चैप्टर से अभी हम लोग उड़ के दूसरा कहीं पे आएगा कि अभी कहाँ पे आ रहा है कि एक पर्सन को डिफाइन करने के लिए या पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन एन एंटिटी इज, उसको पहचानने के लिए अभी हम लोग कैसे पहचान पाएगा, गवर्नमेंट कैसे पहचानता है कि आप कौन सा टाइप का इंसान है, आप HUF में है, आप कंपनी में है, या आप आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, उसको पहचानने के लिए गवर्नमेंट कैसे आइडेंटिफाई करता है। जैसे आप पैदा हो गए, पैदा होने का साथ साथ आप लोग का क्या बनता है, बर्थ सर्टिफिकेट बना है। बर्थ सर्टिफिकेट में क्या लिखा रहेगा, नाम लिखा रहेगा, फादर्स नेम लिखा है, मदर्स नेम लिखा हुआ है, कौन सा हॉस्पिटल में हुआ है, आपका जेंडर लिखा होगा, कौन सा वेट जो भी है वो सब चीज़ लिखा रहता है। तो आपका बर्थ हुआ बोल के आपको आइडेंटिफाई कर लिया है। कोई एक एंटिटी का बर्थ हो रहा है या इनकम टैक्स का पास में आपका नाम जो है, उस नाम को देखने के लिए आप लोग किस डॉक्यूमेंट से आइडेंटिफाई करता है खुद को। सबका पास होगा एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का चीज़, क्या रहेगा, पैन कार्ड रहेगा। वो पैन कार्ड से क्या होता है, आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन दैट एंटिटी इज। अगर आप क्या है, इंडिविजुअल है, तो आपका यहाँ पे क्या लिखा रहेगा,
ठीक है, ये जो फोर्थ लेटर है, फोर्थ लेटर टू पेन, ये डिटरमाइन करता है कि आप कौन सा टाइप ऑफ पर्सन है। ये P4 मतलब क्या हो गया, P स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल, ठीक है। U क्या है, क्या है, रेडिंग समझ में नहीं आ रहा है, सरनेम होगा, क्या है, सरनेम। यहाँ पे मतलब क्या है, कोई भी एक इंसान का नाम जिसका नाम सरनेम किससे स्टार्ट हो रहा है, यू से स्टार्ट हो रहा है, वो उस इंसान का पैन कार्ड है। 4252 ये नंबर आता है और ये अलग से चेक नंबर होता है, इसका कुछ मतलब नहीं होता है। तो हम लोग को कोई भी एक पेन अगर देखना है तो उसमें हम लोग देखेगा क्या फोर्थ लेटर क्या है, उससे डिटरमिन करेगा क्या वो किस टाइप का पर्सन है और उसका नाम किससे स्टार्ट हो रहा है या एंड हो रहा है, वो हम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। इंडिविजुअल हो गया। फिर HUF के लिए क्या होना पड़ेगा, आप लोगों का बुक का क्या है, लास्ट में होगा नहीं क्या, कहाँ पे लिखा हुआ है देखिए तो, चैप्टर में है कि नहीं है सर, नहीं नहीं, आप लोग पहले कंटेंट्स में आइए, पहले स्टार्टिंग में आइए, पेन के लिए अलग से एक चैप्टर होगा, छोटा मोटा होगा। हाँ निकालिए आप, ठीक है। इंडिविजुअल आपने देख लिया, HUF आपको देखना है, फिर उसका बाद हम दूसरे एक में आ रहे हैं। हो गया, नहीं मिला आप लोग को, चलिए पहले ये बताइए अभी फोर्थ लेटर क्या है यहाँ पे और फिफ्थ लेटर क्या है और ये कौन सा एंटिटी हो सकता है, कंपनी हो सकता है, कैसे पता चला आपको, सी से, सी कौन सा लेटर हो गया, फोर्थ लेटर, ठीक है। फिर फिफ्थ लेटर में क्या है, ओ है, ओ से मतलब क्या होता है, क्या हो सकता है, फिफ्थ लेटर में इंडिविजुअल का सर नेम था, कंपनी होने से कंपनी का क्या नाम होता है, कंपनी का सरनेम रहता है क्या, कंपनी का सरनेम नहीं रहता, नहीं,
कंपनी का सरनेम नहीं रहता तो यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल्स ऑफ अ कंपनी हो गया। फोर्थ लेटर क्या हो गया आपका, ये कंपनी है बोल के पता चल गया, और इसका नाम क्या हो गया, ये कंपनी है। नाम क्या हो सकता है ये, ठीक है। ये अगर आपको देखना है कि ये नाम हम सही किया है कि नहीं, तो आपको कहाँ पे जाना है, जीएसटी का पोर्टल खोल के दिखाया था क्या आप लोग को, दिखाया था कोई, और जीएसटी का क्लासेस आपने स्टार्ट किया था, नहीं किया है। तो पेन नंबर याद है आप लोग को अभी, क्या है, 435771, ठीक है। तो आसामी पकड़ लो। अभी यहाँ पे क्या निकलेगा, जीएसटी नंबर ऑटोमेटिकली आ गया, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम लोग अभी जीएसटी नहीं पढ़ रहे। क्या आया, और इंडिया लिमिटेड आया, ठीक है। तो ये क्या नाम हो गया, ओ कहाँ से आया, इनिशियल ऑफ अ कंपनी, जो भी कंपनी होगा उसका इनिशियल होगा। अदरवाइज बाकी जो भी इंडिविजुअल होता है, अगर कोई भी पेन में क्या लिखा हुआ है, पहला फोर्थ लेटर अगर पी में है तो वो हम लोग क्या पता चल गया कि वो इंडिविजुअल हो गया। इंडिविजुअल होने से हम लोग ये जो फिफ्थ लेटर होगा वो सरनेम होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म होने से एफ आ जाएगा, और एफ का फिर इनिशियल्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि वो पेन किसका है और उसमें रेट कितना लगना है। तो अभी रेट कितना लगना है बोलने से आप लोग को ये समझ में आ जाना चाहिए कि इंडिविजुअल्स के लिए अलग से रेट रहेगा, डिफरेंट काइंड ऑफ पर्संस के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेट्स लगेगा, ठीक है। फिर आपको अभी कहाँ पे आना था, चार्जिंग सेक्शन हो गया, प्रीवियस ईयर समझ में आ गया, असेसमेंट ईयर समझ में आ गया, पर्सन भी समझ में आएगा, पर्सन का हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करता है वो भी हम लोग को समझ में आ गया है। तो अभी हम लोग को क्या देखना है कि टैक्स फाइनेंशियल ईयर में अगर हमने कुछ एक कमाया है उसको हम लोग क्या बोला जाता है, इन अ फाइनेंशियल ईयर इन विच वी आर अर्निंग एन इनकम, दैट ईयर वुड बी टर्म्ड एज प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। उसको हम लोग असेसमेंट ईयर में क्या करते हैं, चार्ज करते हैं या टैक्सेबल कराते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या हो गया, सेम ईयर है या अलग अलग ईयर है, बोलिए। ये ईयर और ये अलग ईयर है ना, सेम ईयर है, हम यही क्वेश्चन कर रहे हैं। आपने फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर में पैसा कमाया है, असेसमेंट ईयर में आपको चार्ज करना है, टैक्स लगाना है, दोनों सेम ईयर है या अलग अलग ईयर है, अलग है, डिफरेंट ईयर है। तो जनरल रूल होता है क्या, जनरल रूल ऑफ इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन असेसमेंट ईयर। फिर आपका क्या हो गया, एक्सेप्शंस रहता है। एक्सेप्शंस मतलब क्या है, अगर आपने प्रीवियस ईयर में पैसा कमाया है तो असेसमेंट ईयर में उसका टैक्स नहीं लगेगा। कौन से ईयर में टैक्स लगेगा, प्रीवियस ईयर पे ही टैक्स लग जाएगा। नहीं समझ में आया अभी भी, जनरल रूल बोलता है, जनरल रूल क्या बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में आपने पैसा कमाया है, उस साल में आपको टैक्स नहीं देना है, बल्कि कौन सा ईयर में देना है, नेक्स्ट ईयर जो असेसमेंट ईयर होता है।
एक्सेप्शन से बोलता है कि आपको प्रीवियस ईयर में पैसा कमाया है, टैक्स भी कौन सा ईयर में देना है, प्रीवियस ईयर में देना है। वो केसेस क्या क्या है, 5 केसेस रहता है, 5 केसेस। पहला केस क्या है, शिपिंग बिजनेस। आप क्या बिजनेस में इन्वॉल्व है, शिपिंग बिजनेस में, लेकिन किसका लिए बोल रहे हैं, नॉन रेसिडेंट के लिए। अगर आप इंडिया का रेसिडेंट है और आप शिपिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, तब आपको प्रीवियस ईयर में टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होना पड़ेगा, आपको पहला नॉन रेसिडेंट होना पड़ेगा, और आप कौन सा बिजनेस में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, शिपिंग बिजनेस में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और आप इंडिया में नहीं रहना पड़ेगा। नॉन रेसिडेंट का मतलब क्या है वो भी हम लोग को कहाँ पे पता चलेगा, नेक्स्ट जो चैप्टर है रेसिडेंशियल स्टेटस, उसमें हम लोग को देखना पड़ेगा कि एक इंसान को रेसिडेंट कब बोला जाता है और कब नॉन रेसिडेंट बोला जाता है, तो वो हम लोग को चेक करना रहेगा। ठीक है, फिर आपका क्या आ जाता है, पर्सन्स लिविंग अगर कोई भी पर्सन क्या है इंडिया छोड़ के चला जा रहा है, चाहे वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, या इंडिया का ओरिजिनल रेसिडेंट क्या हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या पर्सन ऑफ नॉन इंडियन ओरिजिन अगर रहता है, तब भी कोई भी एक इंसान इंडिया में क्या कर रहा था, बिजनेस कर रहा था, पैसा कमा रहा था, और वो जब भी इंडिया छोड़ के जाएगा तब उसका असेसमेंट उसी साल को हो जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन formed for a particular reason। जैसे अभी क्या है, एओपी बीओआई हमने बोला था कि कोई एक ग्रुप ऑफ पर्सन हो गया, ये ग्रुप ऑफ पर्सन हो गया, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो गया। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन वो भी एक्ट का हिसाब से बना था, वो लोग किस लिए बना था, फॉर अ पर्टिकुलर रीजन। अगर वो रीजन खत्म हो गया, वो अगर मान लीजिए आप लोग ने बनाया था कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन बनाया था कि हम लोग को एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, म्यूजिक फेस्टिवल एक ऑर्गेनाइज करना है, और ये म्यूजिक फेस्टिवल आपको 27 से 30 तक कहाँ पे करना था, अरुणाचल प्रदेश में आप लोग को करना था ऑर्गेनाइज। आप लोग ने ऑर्गेनाइज कर दिया, करने का बाद आप लोग का बिजनेस खत्म हो गया, आप लोग भाग के चला जाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या बोला जाता है कि अगर आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन एओपी बीओआई या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बना है और एक काम के लिए बना हुआ था, तो वो काम खत्म होने का साथ साथ आप लोगों को टैक्स पेमेंट करना है, ना कि आपको नेक्स्ट ईयर तक रुकना है। ठीक है, फिर आपका क्या आ जाएगा, पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी। ये 3 आप लोगों को फिर से बोलना है, हाँ। पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी क्या है, एक प्रॉपर्टी आपका पास है, ठीक है, पीस ऑफ लैंड आपका पास है, और आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए इसका दाम कितना है, 5 लाख रुपीज है, ठीक है। अभी आप लोगों को अगर नॉर्मली पता ही होना चाहिए कि 7 लाख तक अभी क्या हो रहा है, हम लोग को टैक्स नहीं देना पड़ता है। इफ यू आर अर्निंग एन इनकम, एनुअल इनकम ऑफ 7 लाख और लेसर देन 7 लाख, तब आपको कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं निकलता है। टैक्स तब भी देना पड़ता है, लेकिन वो टैक्स लाइबिलिटी नील रहता है, आपको कोई भी टैक्स आपका पॉकेट से नहीं जाएगा। ठीक है, आप ऐसा एक पर्सन है जिसका पास क्या है, 10 लाख का इनकम, अदर इनकम है। अगर आप ये प्लॉट ऑफ लैंड को सेल कर देगा, तब आपका पास टोटल इनकम कितना हो जाएगा, 15 लाख हो जाएगा। इसको एग्जांपल्स को हम और भी खत्म कर देता है, चलिए 7 कर देता है।
ठीक है, तो आपका पास ये क्या हो गया 12 लाख। 12 लाख होने का साथ साथ क्या हो गया, आपका इनकम 7 लाख से एक्सीड कर दिया, तब आपका क्या निकल गया, टैक्स लायबिलिटी निकल जा रहा है। तो आप क्या किया, चाला बुद्धि लगाया कि मेरा इनकम 7 लाख है और ये 5 लाख का प्रॉपर्टी अगर हम बेच देता तो मेरा पास टैक्स लग जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या किया, ये 5 लाख का प्रॉपर्टी हम अपना मदर का नाम पे ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ट्रांसफर करके मदर का अदर इनकम नहीं है, ये इनकम 5 लाख का हुआ उनको, जो कि 7 लाख से कम है। इसका ऊपर में उनको टैक्स भी देना नहीं पड़ा और हमको तो वैसे भी टैक्स देना नहीं पड़ा, दोनों जगह में हम बच गया। अगर आप ऐसा काम कर रहा है टू अवॉइड एनी टैक्सेस विच इज इलीगल, और ये और उसमें आपको पता चल रहा है कि विद इंटेंशन टू अवॉइड एनी टैक्सेस, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, चाहे वो गोल्ड हो सकता है, कार हो सकता है, या एनी इन क्या हो गया इल वैल्यूएबल, वैल्यूएबल क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, अगर आप क्या कर रहे हैं ट्रांसफर कर रहे हैं, तब भी आपको क्या होना पड़ेगा, असेसमेंट ईयर में नहीं जाना पड़ेगा, उसी साल को, उसी प्रीवियस ईयर को, जिस साल को आप क्या कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं, उसी साल को आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। डिसकंटिन्यूड बिजनेस, अगर आपका बिजनेस क्या हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है, तो आपको उसी साल को टैक्स पेमेंट कर देना है। बिजनेस मतलब क्या हो गया, पहले ही दो में एक हो गया, पर्सन लिविंग इंडिया भाग के चला जा रहा है, यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूड बिजनेस हो जाने से आपका बिजनेस का एड्रेस क्या हो गया, बंद हो जा रहा है। तो आपको कहीं पे भी अगर आप इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, पहला नॉन रेसिडेंट था, शिपिंग बिजनेस इंडिया से निकलते रहता है, तो भागने का पहले पहले टैक्स पेमेंट करो। फिर क्या था आपका, पर्सन लिविंग इंडिया था, इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप टैक्स पेमेंट करो। फिर AOP BOI एक कोई एक काम के लिए बना था, फॉर एन स्पेसिफिक रीजन, वो काम खत्म हो गया, आप भाग जाएगा, तब भी आप टैक्स पेमेंट करो। आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके भाग रहा है, तब भी आप पेमेंट करो। और आपका बिजनेस बंद हो गया, आप भागने का चांस है, जहाँ जहाँ आप लोगों का क्या लग रहा है यहाँ पे भागने का चांसेस आप लोगों का है, तो आपको उसी साल को क्या करना पड़ेगा, टैक्स पेमेंट कर देना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपका क्या आ जाता है, और कुछ था यहाँ पे आप लोगों का बुक में इसका अलावा क्या क्या लिखा हुआ था, हम्म, ठीक है। तो अभी हम लोग जाएगा क्या, टाइप्स ऑफ इनकम में, कि हम लोग को पता चल गया कि हम लोगों को अगर कोई भी, अगर हम लोग को क्या देखना था कि चार्जिंग सेक्शन में क्या देखा था कि असेसमेंट ईयर में टैक्स लगना है ऑन इनकम विच इज अर्नड इन प्रीवियस ईयर एट रेट्स दैट इज डिफाइंड इन फाइनेंस एक्ट अपन पर्सन्स डिफाइंड अंडर सेक्शन 2(3), ये था। तो ये सब चीज में अभी हम लोगों को पता चल गया था कि पर्सन का क्या होना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर में क्या करना पड़ेगा उनको, इनकम करना पड़ेगा। तो इनकम करने के लिए हम लोगों को किस किस टाइप का इनकम को ये एक्ट कवर करता है वो जानना जरूरी है। तो पहला क्या हो गया, सैलरीज। सैलरीज मतलब क्या हो गया, क्या है, काम करके जो मिलता है। ठीक है, अभी एग्जांपल दे रहा भैया, ठीक है, ये पर्सन है और ये मान लीजिए मेरा ऑफिस है। ठीक है, ये पर्सन मेरा ऑफिस में आया, मुझे बोला कि आपको एक सर्टिफिकेट बना के देना है।
ठीक है, या मान लीजिए ऑडिट करके दे रहा है, तो ऑडिट हो गया, ऑडिट होने का साथ साथ इसने पेमेंट किया और इसने सर्टिफिकेट लेके चला गया, ठीक है। तो ये मेरा जो भी अभी पैसा मिला है मुझे, ये मेरा सैलरीज है या नहीं है? नहीं है। तो आपने क्या बोला कि पैसा मिला, काम किया, सैलरीज है, वैसा तो सैलरी नहीं हुआ है। तो बोलिए सैलरीज कैसे होता है? कैसे होता है सैलरीज? वर्किंग अंडर क्या? एम्प्लॉय, ठीक है। ठीक है, पहला हो गया क्या, सैलरीज था आपका, जिसमें पहला चीज़ क्या होना पड़ेगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन रहना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं है और उससे अगर आपको कोई भी पैसा मिल रहा है, उसको हम लोग सैलरीज नहीं माना जाएगा। एम्प्लॉयर मतलब क्या होना पड़ेगा, जो आपको एम्प्लॉयमेंट दिया है, और एम्प्लॉय मतलब क्या, काम कर रहा है किसी के अंडर में, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन रहना पड़ेगा, अदरवाइज वहाँ से जो भी पैसा आ रहा है वो आपका सैलरी नहीं होगा, ठीक है। अभी एग्जांपल मान लीजिए, कोई एक इंसान है जो ऑयल में काम कर रहा है, उसको क्या मिल रहा है, मंथली रेम्यूनरेशन मिल रहा है, किसका लिए, कि वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, किसको, अपना एम्प्लॉयर को, और इन दोनों का बीच में क्या है, सर्विस एग्रीमेंट है, कि एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है, ठीक। करने का बाद में भी उनको क्या मिल रहा है, साथ में उनको बोला है कि आपने कोई एक ऐसा परफॉर्मेंस दो, कि आप लोगों का परफॉर्मेंस मेट्रिक हो गया, परफॉर्मेंस मेट्रिक का हिसाब से अगर आपने मुझे, इस कंपनी को, अगर आपने 20 CR का कोई एक बिजनेस लाके दे दिया, तब आपको हम लोग 5% का एक कमीशन देगा। क्या देगा, कमीशन देगा। ये जो कमीशन मिल रहा है उसको हम लोग सैलरीज में मानेगा या नहीं मानेगा? नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? कमीशन से सैलरी में ऐड नहीं हो रहा है, ठीक है। और कुछ नहीं है, हमने पहले ही बोला था कि आपको क्या करना है, देखना है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है या नहीं है, है, और उसी एग्रीमेंट का अंदर में आपको क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है। एनी अमाउंट दैट इज रिसीव्ड फ्रॉम योर एम्प्लॉयर अंडर एन एग्रीमेंट, जो कि आपका पहले बेसिक एग्रीमेंट में रहा ही है, इन्वॉल्व है, कुछ भी पैसा मिल रहा है वो सैलरीज में इंक्लूड होगा। अगर आपको फ्री में कंप्यूटर मिल रहा है, आपको कुछ भी पैसा मिल रहा है, मेडिकल बेनिफिट्स मिल रहा है, वो सब आपका एनकैश नहीं हो रहा है, वो सब को भी आपको सैलरीज में इंक्लूड करना है। एनी बेनिफिट्स, एनी रेम्यूनरेशन, एनीथिंग दैट इज being received by you for being an employer of an or employee of an employer, सबको कहाँ पे डालना पड़ेगा, आपको सैलरीज में डालना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया, बेसिक है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाउस प्रॉपर्टी मतलब आपका पास क्या होना पड़ेगा, घर। आपका मामा का घर है, वहाँ पे प्रॉपर्टी इनकम हो रहा है, और उस इनकम को आपका नहीं हो सकता, तो उसका लिए क्या होना पड़ेगा, आपका ओनरशिप रहना पड़ेगा। तो अगर आप कोई भी एक हाउस प्रॉपर्टी का ओनर है, और हाउस प्रॉपर्टी में बिल्डिंग आता है कि नहीं, हाउस है तो बिल्डिंग आएगा, और बिल्डिंग का साथ में अगर लैंड होगा, लैंड भी आएगा कि नहीं आएगा। तो लैंड, बिल्डिंग और हाउस प्रॉपर्टी, कुछ भी अगर आप लोग का एरिया है, उस एरिया में मान लीजिए खाली लैंड है, और आपको वहाँ से खाली पैसा आ रहा है, रेंटल इनकम आ रहा है, तो उसको भी आपको कहाँ पे डालना है,
हाउस प्रॉपर्टी में डालना है, कि घर नहीं है बोल के हाउस प्रॉपर्टी में नहीं डालना है, वो बात नहीं है. एनी रेंटल इनकम दैट इज रिसीव्ड फॉर बीइंग एन ओनर ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी और लैंड एपोर्टेनेंट देयर टू. लैंड एपोर्टेनेंट देयर टू मतलब क्या है, लैंड का एरिया, साइड का एरिया, घर का साइड का एरिया, सब में भी अगर आपको लैंड है उस सब को भी आपको हाउस प्रॉपर्टी में इंक्लूड करना है. ठीक है. फिर आ जाता है क्या, ये पहला हो गया, 5 हेड हो गया. 2 हो गया पीजीबीपी, प्रॉफिट्स और गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस. अगर कोई एक बिजनेस काम कर रहा है, वो कौन सा मोटिव में कर रहा है, प्रॉफिट अर्निंग मोटिव में. ठीक है. तो बिजनेस से प्रॉफिट हुआ उसको पीजीबी में डालना है. प्रोफेशनल है आप, प्रोफेशनल मतलब क्या है, आपको एक सर्टेन डिग्रीज लेना पड़ेगा, अर्न करना पड़ेगा. डिप्लोमा ले लिया, मेडिकल हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, फिल्म इंडस्ट्रीज हो गया, ये सब चीज़ में वो प्रोफेशनल को डिफाइन ऑलरेडी किया हुआ है. उसका अलावा अगर आपने किसी एक चीज़ को भी अगर प्रोफेशनल इनकम में दिखाया तो नहीं हो सकता है. उसका ऑलरेडी एक सेक्शन में डिफाइंड है कि ये सब को हम लोग प्रोफेशनल माना जाएगा और इन सब का इनकम को हम लोग को पीजीबीपी में डालना है. रेस्ट ऑफ द इनकम्स उसको दूसरा कहीं पे डालो. ठीक है. फिर आगे कैपिटल गेन. कैपिटल गेन तब होता है अगर हम लोगों के पास क्या है, कैपिटल एसेट है और उस कैपिटल एसेट को हम लोग ने ट्रांसफ़र कर दिया. मतलब क्या कर दिया, सेल कर दिया. सेल होने का बाद में हम लोग को क्या मिला है, फ़ायदा अगर हुआ है, तब हम लोग उसको बोला जाएगा कैपिटल गेन. जो कि क्या हो सकता है, वैल्यूएबल एसेट हो सकता है. वैल्यूएबल एसेट में ज्वेलरी हो सकता है, ड्राइंग्स हो सकता है, पेंटिंग्स हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी भी हो सकता है, बिल्डिंग्स हो सकता है, लैंड हो सकता है, शेयर्स हो सकता है. कोई भी चीज़ जो भी कैपिटल एसेट उसको माना गया है, उसको सेल करने से कैपिटल गेन होता है. और अगर इसका अलावा भी अगर आपका पास कोई भी इनकम आया है जिसको हम लोग सैलरी में नहीं डाल पा रहे हैं, यहाँ पे नहीं डाल पा रहे, उन सबको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में डालना है. ठीक है. तो नेक्स्ट क्लासेस से हम लोग न्यूमेरिकल्स में आ जाएंगे. होगा.